back. You're watching NewsX. My name is Vineet. Voting for the Delhi Assembly elections will take place from 7 a.m. onwards on the 5th of Feb, which is tomorrow. And the government officials and banks will remain shut to ensure maximum voter turnout. A total of 699 candidates are in the fray from 70 assembly constituencies in Delhi. Major candidates to watch out for are Arvind Kejriwal, who is facing a strong challenge from BJP's Pravesh Verma and the Congress's Sandeep Dikshit, both the sons of former chief ministers. Meanwhile, the Kalkaji constituency of Delhi is also witnessing a high-profile contest between Aam Aadmi Party Chief Minister Atishi, Congress leader Alka Lamba and BJP's Ramesh Bidhuri. The question is, what will be the mandate of Delhi? 1.55 crore voters are in fact going to come out and decide what the fate of Delhi is going to be. I'm going to cut across to my colleague Uday Pratap Singh, who is joining us from Connaught Place at this point in time. We also have Anand Singh, who is with us from Karol Bagh. Simran is joining us from Patparganj. Brian Thomas is at Hanuman Mandir in Connaught Place. Mehndi Garg is joining us from Kalkaji. In fact, let me cut across to Simran first. I'll come to you momentarily, Uday. Simran, I've been told you are with some intellectual voices, some people who want to speak their mind when it comes to whom they're going to be voting for tomorrow. And I believe you're in Patparganj, an important area for the Aam Aadmi Party. East Delhi is, predominantly an area where the Aam Aadmi Party has tested a lot of its schemes first. So obviously, it would be a big litmus test for the Aam Aadmi Party on how the voter turnout is going to be and whether the mandate is going to go in their favor or not. Simran? Well, absolutely, Vineet. When we talk about the success and the vote share increase of the Aam Aadmi Party, it cannot be ignored that the Patparganj Assembly which saw the recorded the highest vote share of recorded the highest. Simran, there seems to be a problem with your network. Let me come back to you momentarily. In the meantime, my colleague Uday Pratap is also joining us from the New Delhi constituency in Connaught Place. Uday, what's the scene where you are, and have you tried speaking to voters on ground? What are they in the mood for? It's pretty palpable that the pollution that they're breathing right now is directly reminding them of who's in charge. Well, yes, Vineet, finally D-Day is here, of course. Tomorrow is voting day in Delhi, February 5th. Yesterday, the campaigning, of course, the hectic campaigning came to an end by all the political players. It's been a hectic few weeks, of course, of campaigning in Delhi, in which all the issues, including pollution that you just referred to, have been spoken about by all political parties. We saw, of course, the issue of air pollution come up, the issue of Yamuna pollution, slum dwellers, Purvanchal voters, also, of course, the promises, the freebies, offered by the various parties. That has all been spoken about, of course, and now it's going to be over to the voter. They are going to be speaking from 7 in the morning tomorrow in the 70 assembly constituencies of Delhi. I'm currently in the heart of Delhi, Connaught Place, as it's referred to, the fulcrum of Delhi, of course, this beautiful location where, of course, so many people converge, tourists and also locals and citizens. Of course, Rajiv Chowk Metro Station connects the whole of Delhi together. It's part of the New Delhi Assembly constituency, which is represented by the former Chief Minister Arvind Kejriwal and the Aam Aadmi Party National Convener. He is in an interesting contest this time, a three-way contest with Sandeep Dikshit of the Congress, whose mother, Sheila Dikshit, was the former CM of Delhi, and she was the MLA who preceded Arvind Kejriwal and who actually defeated. And Pravesh Verma, former MP of BJP, is the candidate of the BJP also against Arvind Kejriwal in this seat. So let's speak to some people here. मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप पता है कल बड़ा दिन है, आप बाहर से आए हैं, मगर आपको पता है कल दिल्ली में वोटिंग है? हाँ जी, मालूम है, कल वोटिंग। क्या सुन रहे हैं आप यहाँ पे? कुछ लोगों से बातचीत कर रहे होंगे, क्या सुन रहे हैं, किसकी हवा यहाँ? मतलब मुझे तो केजरीवाल जी की हवा लगती है इधर पे। इस बार आप बताइए, आप दिल्ली के निवासी हैं? क्या लग रहा है इस बार हावी मुद्दे क्या होने वाले हैं? सर, हावी मुद्दा मेन जो लड़ाई सर अभी इस चुनाव की है, वो मेन लड़ाई सर है सर, और एक और सिर्फ रोजगार सर सीपी में सर, हम जो दिल्ली के दिल में बैठे हुए सीपी में बैठे हुए हैं सर 100 में से अगर आप 90 लोगों से पूछोगे सर सब बेरोजगार घूम रहे हैं सर, सब अपना टाइम काट रहे हैं सर। और इसकी गलती किसकी है सर?
गलती सर हमें बचपन से जो गवर्नमेंट एक लाइन नहीं दिखाती है सर, हम चाइना को देखते हैं, हम अमेरिका को देखते हैं, हम बड़े बड़े कंट्रीज को देखते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज को देखते हैं सर, मगर सर हम ये नहीं देखते सर वो अपने बच्चों को बचपन से पालते कैसे हैं सर। तो क्या लग रहा है सर हमें अनाज नहीं चाहिए सर, अच्छा, हमें फ्री नहीं चाहिए कुछ? सर हमें अनाज नहीं चाहिए सर, हमें जो मेन चीज चाहिए सर, हमें रोजगार चाहिए सर। सर आप यकीन नहीं मानोगे सर, तो मेरी उम्र 32 साल हो गई है सर, मैं अभी तक 4 क्या कारोबार। लगता है आपको सबसे बेहतर रोजगार कौन दे पाएगा, कांग्रेस, बीजेपी या आप? आपको सर ये बोलना तो सर ये वो भी नहीं जानते सर, दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे सर वो। ठीक है, तो आप नोटा, लग रहा है आप नोटा पे दबाएंगे कल। जी कुछ और लोगों से पूछूंगा। आर यू फ्रॉम दिल्ली? What do you feel, what are the main issues this time that are dominating the election? See, the central issues will always remain like inflation, महंगाई एक बहुत important issue रहता है, unemployment, the infrastructure, Delhi के अंदर pollution levels is a very important factor. So the basic issues will always revolve around these core issues. And I personally believe कि इस साल बीजेपी को भी आ जाना चाहिए। रीज़न बीइंग आम आदमी पार्टी आएगी तो बीजेपी सेंटर में होने की वजह से उसको काम करने नहीं देती है, तो अल्टीमेटली सफ़र कौन करता है? दिल्ली की जनता सफ़र करती है। तो सेंट्रल और स्टेट में अगर सेम गवर्नमेंट होगी तो एटलीस्ट कम से कम इस राज्य की प्रगति होगी। जो राज्य डबल इंजन सरकार चाहते हैं, इज व्हाट यू क्लियरली सेइंग। ओके, मैं आपसे पूछूंगा, आप दिल्ली से हैं? दिल्ली से। इस बार बदलाव होना चाहिए जी, बस बदलाव होना चाहिए, किसकी तरफ? बीजेपी की तरफ। क्यों, वजह? भैया क्या बस काम वाम नहीं कि कुछ दिन पहले का बयान है, कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल कहते हैं हाँ जी मैं 24 घंटे मैं बिजली फ्री दे सकता हूँ और मेरे उन्हें भगवान जी की बजरंग बली की शक्ति दी है, तो अजीब अजीब बयान, तो उससे ये बदलाव होना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप दिल्ली से हैं, क्या लग रहा है इस बार? सर बदलाव होगा। किसकी तरफ? बीजेपी की तरफ। दो ही नॉर्मल, क्योंकि कांग्रेस अगर अच्छी चुनाव लड़ती है तो भाजपा जीत सकती है। That is very interesting, because people are saying, Vineet, in this seat, Sandeep Dixit is actually cutting into not Parvesh Verma's votes, but Arvind Kejriwal's votes. आपसे पूछूंगा, आप दिल्ली के निवासी हैं? हाँ जी, दिल्ली के। क्या लग रहा है इस बार? इस बार देखो कुछ इनकी आपकी सीटें कुछ कम होंगी, कंपटीशन तो रहेगा, लेकिन जीतेगा केजरीवाल ही। केजरीवाल, मगर सीटें कम होंगी। क्यों लग रहा है आपको कि वही जीतेंगे? क्योंकि जो इन्होंने जो पुराना जो नीच कस का जो इनका वोटर है वो इनके जो फ्री बाइस पहले दी हुई हैं उसी के चक्कर में वो उनको वोट देना चाहता है। तो फ्री भी वोट जो है, जो आप कह रहे हैं, जो उनके प्रोमिसेस हैं, उसकी वजह से वो जो वोट बैंक है वो काफी इनका पक्का हो चुका है। चलिए कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। आप तो काफी यहाँ आप अपनी सामग्री बेच रहे हैं, हम देख पा रहे हैं। ठंड भी लग रही है आपको साहब? कैसी बिक्री हो रही है? सर्दियों में कम हो जाती है कि बढ़ती है बिक्री? सर्दियों में ज्यादा होती है बिक्री, लेकिन इस समय बिक्री नहीं है। सर्दियों में ज्यादा बिक्री होती है। चलिए, तो आप काफी, हाँ, इस समय काम नहीं है। काम नहीं है, तो आपको लगता है ये जो दिल्ली चुनाव चल रहा है, दिल्ली चुनाव चल रहा है, आप सुन रहे होंगे कि लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, बीजेपी की, आपकी, कांग्रेस की, आपको क्या लग रहा है? क्या सुन रहे हैं? दूसरे से पूछ लीजिए। चलिए, तो ये अपनी सामग्री के बारे में बात करेंगे, मगर वोट के बारे में नहीं। काफी दिलचस्प इस बार चुनाव है विनीत, वेरी इंटरेस्टिंग इलेक्शन ऑफ कोर्स दिस टाइम। आपसे पूछेंगे साहब, यू आर अ लॉयर? Okay, you are coming from court straight? Okay, well tomorrow it's the court of the people that will decide who will win. So what do you feel? I think for Delhi, Kejriwal is the best, and he has done a lot of many things. So as far as the improvements and the developments are concerned, there is... What are you most impressed by of the AAP government? Respect to Delhi as such, the working style, and he's a non-corrupt person, what I personally feel. Whatever may be the allegations against him, but personally what I feel is, he is a man, he was a retired income tax. So any person who wants to work for the people, for Delhi as such, he won't be cheating Delhi people. So I think it is the best that people go for Kejriwal. What about you, ma'am? What do you feel? But आप क्या सुन रहे हैं? What are you hearing? It's going towards AAP this time, BJP, Congress? बीजेपी को आना चाहिए। मुझे लगता है कि किसी नए को चांस देना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल ऑलरेडी मतलब जनता को एक पे ही नहीं करना चाहिए, एक बार चांस तो देना चाहिए बीजेपी को भी आने के लिए कि क्या चेंजेस वो करते हैं। उन्होंने किया भी है, and I support BJP. Okay, so interesting. You have the lawyers here. Already it's become a case. One is arguing one's case, the other is arguing the other's case. Although they are on one team. This is interesting. Okay, आपसे पूछेंगे, क्या लग रहा है इस बार? मेरे हिसाब से बीजेपी आएगी इस बार, क्योंकि ये नई दिल्ली सीट जो है, ये अरविंद केजरीवाल खुद की सीट है, मगर यहाँ इस बार परवेश वर्मा मुकाबले में संदीप दीक्षित है। क्या लग रहा है? परवेश वर्मा सर निकालेंगे? बिल्कुल निकालेंगे सर, क्योंकि 10 सालों में ना केजरीवाल ने काफी कुछ देख लिया कि जो लोग ना कि हम बिजली मतलब बिल्डिंग नहीं लेंगे, मतलब बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, सब कुछ लिया है इन्होंने सर।
और 24 साल से बीजेपी बाहर है सत्ता से, और कांग्रेस अभी 10 सालों से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, लेकिन कांग्रेस पर टक्कर देगी। वो सिर्फ क्या करेगी, बीजेपी का जो वोट बैंक है वो अभी भी वहीं के वहीं है, वो शेयर कभी हटा ही नहीं है। सिर्फ कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही, लेकिन कांग्रेस पर अच्छा जोर लगा रही है। तो मेरे हिसाब से जो बीजेपी का वोटर बीजेपी का अभी भी है। ओके, और ये आपको नुकसान होगा, उनको आपको नुकसान होगा। Okay. So try three-way contest, because we've seen last time, interestingly, that the seats did come down of the AAP, but it came down from 67 to 62. Although, of course, the BJP's vote share had increased last time, but not by quite a bit. This time it will be interesting to see what their, of course, vote share is. It's, of course, busy time in Connaught Place. Many people we can see, of course, who are roaming around here. Let's try and speak to some more people to ask them their view. आप क्या दिल्ली के ही निवासी हैं? क्या लग रहा है इस बार? कल वोटिंग डे है, बहुत बड़ा दिन है जी। क्या लग रहा है आपके? तो यू फील कांग्रेस की लहर है आपके, तो कांग्रेस की लहर है। हाँ। कांग्रेस इस बार टक्कर दे रही है, टक्कर दे रही है आपके कांग्रेस। ये सीट जो है संदीप दीक्षित की सीट है, वो यहाँ मैदान में है। अच्छा, उनकी पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जो कांग्रेस की मुख्यमंत्री थी, ये उन्हीं की सीट है। क्या लग रहा है कि वापस कांग्रेस के खाते में आने वाली? हाँ बिल्कुल आएगी। क्यों ऐसे लग रहा है आपको? क्या कांग्रेस की लहर क्यों आप मान रहे हैं? कुछ जैसे केजरीवाल साहब से कुछ खास वो उम्मीद है नहीं, जैसे उन्होंने जो अपने 10 साल का कार्यकाल करा ना, उसमें वो वाली बात है नहीं। जो होना चाहिए था वो नहीं कर पाए वो। और वो जैसे इस पर आए थे, लोकपाल बिल पर आए थे, उसका भी कोई मसला नहीं, उसका जिक्र ही नहीं होता। तो ऐसे इसलिए मैं तो खुद कांग्रेस को ही दूंगा। अच्छा, कांग्रेस को देने वाले। चलिए, I'll ask you, you are a youth, क्या what are you hearing this time? क्या लग रहा है आपको? Are you hearing AAP, good things about AAP, BJP, कांग्रेस? क्या? Okay. Congress. Uday, let me come back to you momentarily. Let me also, in fact, rope in Anand Singh, my colleague who's joining us from Karol Bagh at this point in time. Anand, you're in Karol Bagh. Of course, a high voltage run-up to elections in Karol Bagh as well. Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami was campaigning for BJP's Dushyant Gautam. Mahua Mitra was campaigning for Vishesh Ravi of the Aam Aadmi Party in Karol Bagh. They seem to be, in fact, doing the right plugins when it comes to the marketing, but I can see some people behind you. What is the pulse of Karol Bagh? That's another constituency where the Aam Aadmi Party has done a lot of heavy work. Yeah, Vineet, look, if we talk about the Karol Bagh Assembly seat, then this is one of the 12 reserve seats in the national capital. And if we talk about the areas over here, then this is one of the business hub of Delhi, as Karol Bagh, famous car market, and even the mobile accessories market, that is the Gaffa market, located in this assembly seat. And if we talk about Aam Aadmi Party, the Aam Aadmi Party has once again fielded Vishesh Ravi, the 3-time sitting MLA from this seat. And now the BJP has fielded one of its heavyweight, that is Dushyant Gautam, the BJP's National General Secretary, who is also the in charge of Uttarakhand and Mahila Morcha. So this seat has around 1.77 lakh voters, and even the Vishesh Ravi, the Aam Aadmi Party candidate, had won this seat with a vote share of around 67% in last 2 consecutive assembly polls. So we have number of people over here with whom we will speak and try to understand that what is the mood over here in Karol Bagh. So we will go to people and try to understand the mood over here. Sir, आपका नाम? मेरा नाम अक्षय कपूर. So मैं यहाँ पे, मेरा बिजनेस भी है और मेरा रहना भी यहीं पे ही है, इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में है. क्या क्वेश्चन आप बताइए. सर, मुद्दे क्या हैं करोल बाग में? आम आदमी पार्टी कह रही है कि पिछले 11 साल में उन्होंने काफ़ी विकास का काम किया है, तो आप उनके काम को कैसे देखते हैं? चूँकि कल दिल्ली में वोटिंग है, तो वोटिंग के दौरान आपके मन में क्या चल रहा होगा? सर, मैं तो अपना बताऊं, मेरे लिए 2 एस्पेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरा काम धंधा और मेरे बच्चे. पहले अगर एस्पेक्ट देखूँ तो बच्चों के लिए दिल्ली रहने लायक नहीं रह रही सर. बहुत अनहाइजेनिक होती जा रही है, इतनी गंदी होती जा रही है. इट्स सो डर्टी, आई कैन टेल यू. मतलब आप लुक एट द एयर हेयर, आप बच्चों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम. इट्स लाइक हैविंग सिगरेट, 10 पैक्स ऑफ सिगरेट एवरी डे. मेरे हाफ ऑफ द फ्रेंड्स हैव माइग्रेटेड टू सम प्लेसेस, जो अफोर्ड कर सकते हैं बाहर चले गए हैं, जो अफोर्ड नहीं करते यहाँ कैसे रहेंगे बच्चों के साथ? आप बताओ ना. जो पानी पी रहे हैं, हम आरओ बार बार चेंज कराते रहते हैं, कैंडल्स उसकी चेंज कराते रहते हैं. बॉस, ये इनसे बात मतलब आई एम शॉक्ड एंड आई एम अमेज्ड दैट दिस गाय मिस्टर केजरीवाल 3 days बैक ही सेड कि भैया पानी में जहर मिला दिया. अरे बॉस, अगर जहर मिला रहे हैं तो आपके पास CID करके बैठे हुए थे कि ये सब कर रहे हैं?
ये आपकी ड्यूटी है, बहुत साफ होना चाहिए। अमोनिया को आप वो कह रहे हो कि दैट अमोनिया इज जहर, मतलब हमें डर लगता है सर, ये ऐसी ऐसी कमेंट्स कर देते हैं कि कल को हमने 3 दिन से, आप सोचो, हम बिस्लरी का पानी ले रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए बच्चे को, मतलब आप डराने का काम करोगे, आप सीएम आप काम करने का काम करोगे। एंड सेकेंड रीजन इज द एयर बॉस। कोई यहाँ पे आप देखो ना, लोग पूरे वर्ल्ड में देखते हैं, ये कहते हैं मैं इसको लंदन बनाऊंगा, पेरिस बनाऊंगा। बॉस मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, आई एम अ वर्ल्ड ट्रैवलर। लोग मरते हैं कि उनकी सिटी के अंदर ना एक अच्छी सी एक रिवर हो, उसको आप क्या बना सकते हो, आप इतना सुंदर बना, गंदा है, मैला, 3rd क्लास। आप मानोगे मेरे घर के पास इतना सुंदर पार्क है, मलखा पार्क है यहाँ पे, वो अच्छा खासा पार्क था, हम वॉक करते थे वहाँ पे। इन्होंने पीछे छठ पूजा में उसको खोद दिया, नया सिस्टम बना दिया बॉस। सूर्य भगवान को अगर जल चढ़ाना है तो उसको खोद दो और वहाँ पे शुरू कर दो। बॉस यमुना क्यों नहीं साफ करते आप? Okay. So we will go to some more people over here, as we can see that some of the women voters are also here. So we will speak to them, as one of the person over here mentioned that how the Delhi former Chief Minister Arvind Kejriwal mentioning about that the Haryana has mixed poisons in the Yamuna river. So this is one of the biggest issues that have emerged in these polls. Ma'am, आपका नाम? मेरा नाम शालिनी राठी है। शालिनी जी, करोल बाग की सीट काफ़ी एक बिजनेस हब है यहाँ पर। आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के लिए काफ़ी वादे किए हैं कि किस तरह से उन्होंने काम किया, महिलाओं के लिए बस में यात्रा फ्री कर दी। अगर वो फिर से चुनाव जीत कर आते हैं तो उन्होंने एक और गारंटी इस बार दी है कि 2100 रुपये प्रति महीने देंगे। सारी पार्टियां अब कह रही हैं कि सिलेंडर का प्राइसेस कम करेंगे अगर वो पावर में आती है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो। तो कैसे देखती हैं आप, चूँकि खुद भी एक गृहिणी हैं, तो किस तरह से देखती हैं आप ये तमाम वादों को यहाँ पर दिल्ली में? देखिए, मैं यहीं की निवासी हूँ, यहीं रहने वाली हूँ। मुझे फ्री का कुछ भी नहीं चाहिए सर, मुझे फ्री का कुछ भी नहीं चाहिए। और पहली बात, मेरे बच्चा सुरक्षित नहीं है। मैं कहीं पीछे फंक्शन में, पार्टी में कहीं अपने बच्चे को छोड़ के नहीं जा सकती। मेरा 17 साल का बेटा है, जो शराब एक के साथ एक फ्री और वो पाउच वाली जो ये सब इन्होंने चला रखी है, मुझे इससे भय है। मेरा बच्चा बिगड़ सकता है, डगमगा सकता है, वो अपने भविष्य का, उसका भविष्य ख़राब हो रहा है। और रही वादों की बात, तो पानी 200 रुपये का लेके हम पी रहे हैं। आप सफाई देख लो, सफाई का कहीं नाम नहीं है। और रही फ्री की, बस की फ्री की, तो हमें फ्री नहीं चाहिए। आप हमें हमारा रोज़गार दो ना, आप रोज़गार दो, टाइम से सैलरी दो, ताकि हम उसी रोज़गार में, उसमें हम अपना भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य, हम अपने भविष्य को स्टैंड कर सकें, हम खड़ा कर सकें उसको। फ्री का हमें कुछ भी नहीं चाहिए केजरीवाल जी से। और कोई भी वादा उनसे, कोई भी वादा, जो भी उन्होंने वादा दिल्ली में किया, वो किसी भी वादे पे खरे नहीं उतरे हैं जी। Okay, Vineet, so you heard the voice of the woman over here, that she clearly mentioned that she doesn't want anything free from the Aam Aadmi Party government. What they need is the employment over here in the national capital. So we are joined by two of the senior citizens over here, to whom we will speak and try to understand that what are the issues that are going to drive them in the elections tomorrow in the morning when they step out of their homes and they go and exercise their right in the Delhi Assembly polls. Sir, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर शिवचरण सिंह पीपल है। मैं बापा नगर देवनगर का निवासी हूँ। और अभी बहुत पहले इन्होंने कहा था कि हम पानी माफिया को, टैंकर माफिया को ख़त्म करेंगे। वो जो टैंकर माफिया था वो इस इलाके के रोम रोम में घुस चुका है। आम इंसान को पानी नहीं मिलता है, लेकिन जो पानी बेचने वाले हैं वो करोड़ों रुपया कमा रहे हैं और दिल्ली के एमएलओ को वो पैसा दे रहे हैं। वो पानी बेचने वाले वो एमएलए को पैसा दे रहे हैं। केजरीवाल की जहाँ तक बात है, उन्होंने केवल इस कॉन्स्टिट्यूंसी का बुरा नहीं किया है, उन्होंने देश की पृष्ठभूमि, देश के ऐतिहासिक सिस्टम को झकझोरा है। कि जब उनसे पूछते हैं कि आपको डर नहीं लगता, आपको डर नहीं लगता, आप ऐसी बातें करते हैं, तो एकदम तपाक से वो कहते हैं क्या भगत सिंह को डर लगता था? मैं आपसे पूछता हूँ, आपका शुभ नाम? आपसे पूछना चाहता हूं कि वो अपने आप की तुलना भगत सिंह से करेंगे? वो 6 केसों में, मानहानि के केस में माफी मांग चुके हैं। क्या हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने माफी मांगी थी? Also rope in Simran at this point in time. Simran is joining us from the Patparganj constituency, which has been a bastion for the Aam Aadmi Party. Manish Sisodia had represented this constituency since 2013, but now he's obviously moved on to Jangpura. The Aam Aadmi Party has fielded Awadh Ojha, who's a teacher turned politician. He's up against BJP's Ravinder Singh Negi and Congress's Anil Chaudhary. Let's try and assess and gauge the mood, Simran, of what people in Patparganj are voting for.
absolutely, Vineet. As in fact, you have very rightly put out, we are in Patparganj, and it's Acharya market, which is the bustling hub of the traders, of in fact the people and the voters of the East Delhi constituency. And when we are talking about in the evening, this is the kind of environment that you can see here, with even the pulse of the election being tracked very closely from here. Let me firstly get to the in fact root of the voters and what they are thinking just to vote for tomorrow. कल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा क्या है पटपड़गंज के लिए? मनीष सिसोदिया हमेशा यहाँ से प्रोमिनेंट रहे हैं, आम आदमी पार्टी का यहाँ पे बहुत प्रभाव रहा है. अब बीजेपी के लिए क्या मुश्किल बढ़ सकती है या बहुत आसान लग रहा है? बीजेपी के लिए मुश्किल नहीं बढ़ेंगी. बीजेपी के लिए मुश्किल इसलिए नहीं बढ़ेंगी, जो ये आम आदमी पार्टी है उन्होंने यहाँ कुछ किया नहीं है. मनीष सिसोदिया जो है उन्होंने यहाँ कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसको लोग ये कह सकें कि मनीष सिसोदिया ने कोई बहुत अच्छा काम किया. सड़कें यहाँ हालत ख़राब है, सबके सीवर कहीं से भी चले आइए, सीवर सब भरे हुए हैं, घरों में पानी तक आता है. ये हिसाब है. आप यहाँ नहीं, पूरे कोई भी मार्केट में कहीं चले जाइए, एक सीवर भी अगर आपको साफ मिल जाए तो बताइएगा. ये दो चीज़ें ऐसे हैं. नंबर 3, पॉल्यूशन का क्या हाल है, ये पूरी दिल्ली क्या पूरे वर्ल्ड को पता है कि दिल्ली कहाँ पे है पॉल्यूशन में. नंबर 4, इंक्रोचमेंट. अगर मार्केट में अगर कोई आदमी दुकान लेके बैठा है, उसके सामने आप ठेलियाँ लगवाओगे तो कहाँ से वो करेगा? आप खुद सोच रहे हैं, एक आदमी 1 करोड़ की दुकान लेके बेचता है, टैक्स देता है, जीएसटी पे करता है, उसके सामने आप 10 रुपए की रेडी को खड़ा कर दोगे. आप उनको स्थान दो, हटाओ मत, उनको अलग से स्थान दो, उनको भी बिठाओ. वो लोग भी, सबको रोजी रोटी चाहिए. लेकिन आप इन्होंने किया क्या? एक गवर्नमेंट स्कूल की बात करते हैं. मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूँ. गवर्नमेंट स्कूल में करते क्या हैं ये लोग? गवर्नमेंट बिल्डिंग बनाने से गवर्नमेंट स्कूल नहीं बन जाता. आप कोई भी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे लाइए, उनको बाहर निकालिए, इतने अच्छे अच्छे श्लोक देते हैं कि आपके कान बंद हो जाएंगे. इतने अच्छे अच्छे श्लोक देते हैं. ठीक है? Well, absolutely. In fact, listen to these voters. They are going to be deciding the fate. But what importantly, the Congress has been rallying in Patparganj is against the liquor scam. So let us also understand from the people if at all the liquor scam has made a difference on the ground or not. जिस तरीके से शराब घोटाले की बात हुई है, आम आदमी पार्टी के ऊपर बहुत बड़े बड़े आरोप हैं. पटपड़गंज में जब बात होती है, बहुत सारे ठेके हैं, यहाँ पे काफी खुले भी हैं, और ऐसी जगह देखी जाती है जहाँ पे ठेके सबसे ज्यादा बड़े भी हैं. तो क्या लगता है आपको, वो उस चीज का ग्राउंड पे कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है उसका, क्योंकि देखिए आज के टाइम में पैसे की इनकम किसी के पास भी ज़्यादा नहीं है. अब जो इनकम बंदा पूरे दिन मेहनत करता है और वो शराब में शाम को उड़ा दे, वो घर पे क्या खर्चा करेगा? शराब एक गलत चीज़ है और इसको ये गलत प्रमोट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा. ये नहीं करना चाहिए कभी भी. पर इस समय अगर देखा जाए पटपड़गंज के लोकल इश्यूज के लिए, तो क्या हवा बदली है या अभी तक लॉयलिस्ट रहे हैं आम आदमी पार्टी के? नहीं, लॉयलिस्ट नहीं है. अभी दोनों की बराबर की टक्कर है. अब इसमें तो बाजी देखता है कि लास्ट में कौन मार जाता है. हिम्मत की बात है कि पब्लिक में चेंजेस आए. पब्लिक में चेंजेस आए हैं इस व्हाट द पल्स ऑफ द वोटर्स इज. एंड आई एम आल्सो बीइंग जॉइंड बाय अ यंग वोटर, यंग enthusiastic, vibrant voter thinking with a fresh perspective. Let me also firstly get across to her. What are you thinking for tomorrow? What is the main reason for casting the vote, and what are your priorities being a young voter? First of all, I'll be voting for BJP. And the main reason for that is in the past years, nothing has changed in Delhi. First of all, the most important issue being pollution. Nothing has been done to, work for pollution in the long term. I mean, Kejriwal or Atishi for now. So they have these schemes that tackle pollution in the short term. So, and the other main issue could be the toxicity in Yamuna. So most of the vote bank in Delhi is Purvanchali. So during the Chhat Puja and all, Yamuna is full of toxic waste, and it is supposed to be a religious thing for them. So it should be taken care of. And second of all, I believe that if BJP is given a chance in Delhi, the way UP's infrastructure has been improved after the government of BJP has been there, it could also be the case in Delhi as well. Well, that's how, in fact, the young minds are thinking right now, in the similar lines to what the development model in Uttar Pradesh has witnessed. Right now in Delhi, the same resonance can be tracked on the ground. And it is also for a fact that since 1993, BJP has not been able to win this particular constituency. And when we are talking about major issues like pollution and the cleanliness of Yamuna, it is not
absent from the ground that these are not the issues, at least for the people in पटपड़गंज. आपको क्या लगता है जिस तरीके से देखा जा रहा है पटपड़गंज में सबसे बड़े जो मुद्दे हैं वो अभी भी क्या शराब के हैं, या जिस तरीके से घोटालों की बात करी है, यमुना का है, पॉल्यूशन है, पटपड़गंज के लोगों के लिए विकास कहाँ पे खड़ा होता है? पर यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा शराब का रहा. फिर हमारे यहाँ मतलब जो ना सीवर लाइनें सब भरी हुई हैं, लोगों के घरों में पानी जाता है वापसी, और उसके बाद में मतलब जो ना पानी भी जो ना बहुत गंदा आता है, कभी कभी तो काला आता है बिल्कुल. और मतलब जो ना यहाँ से तो कोई टक्कर में नहीं है जी, यहाँ तो रवि नेगी की. पर रविंद्र नेगी को पिछली बार ही 3000 से ऊपर वोटों से हराया गया था. हाँ जी, वो 3000 वोटों से जब गलतफहमी थी थोड़ी सी लोगों को, अब 20-5 साल में वो सारी निकल गई है. तो आप कह रहे हैं कि जो वोट का मार्जिन है वो कहीं ना कहीं अपने आप पूरा हो जाए? बिल्कुल पूरे से भी, मतलब अच्छे बहुमत से, पूर्ण बहुमत से जीतेगा. तो वोट देने की सुझाव क्या रहेगा, किन मुद्दों पे वोट दिया जाए? ये पानी बिजली का और ये इसका शराब का है जी, और गंगा जो जमुना जी का है वो तो बहुत ही ज्यादा. सफाई जो है बिल्कुल नहीं हो रही. जब से ये एमसीडी में आप वाले आए हैं पूरी दिल्ली को नरक बना दिया. मयूर विहार इतनी गंदी नहीं होती थी, जब से एमसीडी में इनका राज आया है नरक बना दिया इन्होंने. पिछले 10 सालों में क्या और बेकार हुए हैं हाल? बहुत बेकार हुआ, बहुत बेकार हुआ. दिल्ली को इन्होंने गंद बना दिया. Hold on to that thought. देखो रोड डेवलपमेंट देखो, रोड बिल्कुल 10 साल में. Simran, hold on to that thought. I'm also going to go across to Kalka ji. I believe my colleague Mehndi Garg is also joining us at this point in time. Mehndi, Kalka ji is of course a very important constituency. The current Chief Minister Atishi is of course contesting from there against Congress's Alka Lamba, who used to be with the Aam Aadmi Party and has come back to the Congress Party. In fact, Alka Lamba won her last election with the Aam Aadmi Party from Chandni Chowk, I'm not mistaken, and they're up against the BJP firebrand Ramesh Bidhuri. And the last time around, Atishi, in 2020, I remember, Mehndi, she won the same constituency by around 12,000 vote, which, you know, in voting parlance is not considered to be much. Do you think her popularity as the Chief Minister now is going to help her cross this number? What does the contest look like over there, and what kind of issues and agendas and problems are people reporting? Well, indeed, Vineet, we are in the Kalkaji Assembly constituency right now. It is one of the VVIP seat, we can say, because right now the elections here are triangular, because the Delhi's Chief Minister Atishi has been fielded from the Aam Aadmi Party. The BJP senior leader Ramesh Bidhuri is contesting, and also Alka Lamba is contesting from the Congress Party, who has, who was once Aam Aadmi Party's member as well. A lot of people has joined us, and we'll try to have an understanding with these people that what all issues are here in this particular constituency, and what do they think about the manifestos as well that all the parties are offering in front of the people of the national capital. We are joined by a lot of women, males, and also young voters. We'll start with one of the young voters, Vineet, right now. We'll start with you, because you are one of the major segment of the we can say the constituency. So what do you think about the local issues that are here in this particular constituency? So first of all, there is a problem with freebies. The second problem is environment, and third problem lies with garbage. And fourth one, where the Mr. Aam Aadmi Party has promised us that we will provide a land of lakes, city of lakes, as a London compared with. But at this moment, we see flood of cities. Cities is filled with floods, especially in summers, in winters. There is a water problem, water scarcity, garbage problem, and we have seen that in winter season there is a air quality index problem which is crossed over 400. Right. That is carcinogenic and injurious for our health. So this is the big problem, and the biggest problem is blame game, where we cannot see key policies implemented by whom, whether it is by central government or by state government. So there is a problem of coordination, collaboration, and coordination. Right. So that kind of problem is visible here, there, and everywhere. So there is a problem of tenants problem also. The Delhi is filled of many tenants, but we cannot see any provisions for them.
That's all. Right. We can understand, Vineet, that there are a lot of problems that the young voters are also witnessing in this constituency. The local issues and also the issues that pertains in the national capital all over. Sir, मैं आपसे भी समझना चाहती हूँ, इतने सारे मुद्दों की इन्होंने बात की, पोल्यूशन है, गंदगी है, यहाँ पर पानी की समस्या भी है, लेकिन अगर योजनाओं की बात की जाए तो फ्री बिजली, फ्री पानी और महिलाओं के लिए जो 2100 की योजना है, 2500 की योजना है, ये सब भी जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से लागू की जा सकती है अगर वो पावर में आती है। तो इन सभी मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए उनको किस तरीके से देख रहे हैं? मैडम, तो ये है कि जो फ्री दे रहे हैं ये बंद होना चाहिए। उसका रीज़न ये है जब फ्री में हम कोई चीज़ देंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो ठीक होगा नहीं। उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी बात है कि सड़क चाहिए, बिल्कुल पानी चाहिए, अच्छा एयर जो है ये पॉल्यूशन है ये बंद ये होना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है जाम की प्रॉब्लम है, जिसमें 2-2, 3-3 घंटे लगते हैं। इस एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये ख़त्म होनी चाहिए। So we need traffic congestion is also a very big problem that pertains in this constituency. But we can say that women voters have turned out to be the game changers in early elections as well. Okay, let me also rope in Brian at this point in time. I believe my colleague Brian is at Hanuman Mandir in Connaught Place. Brian, I can see that you're right in front of Hanuman Mandir at this point in time. In fact, Arvind Kejriwal, the Chief Minister, visited this this Prachin temple just a few days ago to seek blessings. What's the mood out there, Brian? Brian? Yeah, Vineet, am I audible? Yes, you're audible, Brian. Brian, Arvind Kejriwal was at Hanuman Mandir just a few days back. Definitely a triangular fight is taking place at this very Vidhan Sabha, which is the New Delhi Vidhan Sabha, where you have the former Chief Minister Arvind Kejriwal from Aam Aadmi Party, you have Parvesh Sharma from BJP, and you have Sandeep Dixit from Congress. And when I'll just show you the visuals also where we are. This is also regarded as one of the most iconic places. This is the, very famous Hanuman Mandir. You can see the bustling crowd. You can see the evening that is full of enthusiasm. You see all kinds of people, all walks of life, who are here also. And also, yes, definitely the national capital is geared up for the elections. Ma'am, आपसे जानने का कोशिश करने के क्या लग रहा है, माहौल क्या है, किसकी हवा है, क्या आपके हिसाब से? अभी तो लग रहा है 100% बीजेपी आने वाली है। अगर मैं आपको पूछूं 10 में से अरविंद केजरीवाल जी को, वो एमएलए रह चुके हैं, सीएम भी रह चुके हैं, उनका काम कैसा था? 10 में से कितना मार्क्स देंगे? 3 क्यों? 3 क्योंकि एक्चुअली मतलब कि वो सिर्फ बोलते हैं कि उन्होंने क्या, वो बोलते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल देखो जाके इतना अच्छा बना दिया है। अभी मैं रिसेंटली आ रही थी मेरे घर के उधर से, गवर्नमेंट स्कूल है, तो अभी वहाँ पे वोटिंग होने वाली है, तो वहाँ पे अभी पेंट वेंट हो रहा था, तो मतलब लगता नहीं है कि वो बोलते हैं कुछ किया है उन्होंने, बस अपना शीश महल बनाया है। अच्छा मैम, अगर हम बात करें तीनों पार्टी की, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने, तीनों ने बोला है कि हम 2100 और 2500 पैसा देंगे विमेन को, तो आपके हिसाब से कौन सी ऐसी पार्टी है जो ग्राउंड लेवल में आके जो वादे किए हैं वो पूरी करेंगी? बीजेपी सरकार करेगी ग्राउंड लेवल पे आके। हाँ जी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने तो देखो वहाँ पे पंजाब में बोला था देगी, वहाँ पे पैसा 1000 रुपया कितना देगी, तो उसने वहाँ पे दिया ही नहीं अभी तक, तो बीजेपी देगी। बीजेपी तो सब जगह अच्छा कार्य कर ही रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सो Vineet will also be going and attempting to talk to more people who are here. You can see this entire crowd that is bustling with a lot of people. Sir, आपसे भी जानने का कोशिश करेंगे। Let me in fact go back to my colleague Anand at this point in time. Anand, you're still with people. In fact, there was a good mix of people who were complaining about the Aam Aadmi Party and how the situation in Delhi has gone from bad to worse, how the unemployment situation is something that, cannot find any stakeholders. What's the conversation right now with the people that you're with? Yeah, Vineet, look, now I am joined by some of the youths over here, as several of the people have complained about the issue of unemployment. So we'll go to them and try to understand that what are the issues that they are going to vote for in the Delhi Assembly polls that will be happening tomorrow. भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम लोहित है एंड मैं यहाँ पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ। करोल बाग का मैं रेजिडेंट हूँ, वोटर हूँ मैं यहाँ पे। एंड जिस तरीके से आपने अभी यू इंट्रोड्यूस यूथ यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट, देखिए मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहूँगा। दिल्ली में अभी करोल बाग विधानसभा की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर
बड़ी बड़ी मार्केट चलती है यहाँ पे। टैंक रोड मार्केट है, एशियाड मार्केट है, गफ़ार मार्केट, मोबाइल की बड़ी मार्केट है। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पर और है, यहाँ पे पहाड़गंज में होटल्स बहुत सारे हैं। अब मैं आपको एक देखो समझो, अगर जो समस्याएं होती है ना, कई बार हम तो होता है कि एक विचारधारा के होते हैं तो हम वो चीज़ें अपने मुंह से बोल देते हैं, मगर कुछ चीज़ें प्रकृति भी बताती है। आज से 6-7 साल पहले, 8-9 साल पहले ना दिल्ली में बहुत सारे टूरिस्ट आते थे, हमें यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट दिख जाते थे। आज वो टूरिस्ट कहाँ पर है? सारे के सारे। जब हमारे घर में कोई मेहमान भी आता है, हम अपने घर को 2 बार सफाई करते हैं, बाथरूम से लेके किचन तक 2 बार सफाई करते हैं। दिल्ली की हवा गंदी हो गई, दिल्ली का पानी गंदा हो गया, दिल्ली की सड़कें खराब हो गई। यहाँ पर दिल्ली का आदमी जो है वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा जैसे इलाकों में जाकर अपने घर खरीद रहे हैं। क्यों? दिल्ली अब रहने की लायक जगह नहीं बची। और ये रियल है, ये मैं नहीं कह रहा। ये दिल्ली का टूरिस्ट कहाँ पर है? यहाँ पर आना कोई पसंद नहीं कर रहा। जब यहाँ पर आ ही नहीं रहा है तो फिर आप यहाँ पे किस तरीके की, देखो जहाँ पर एक हब होता है किसी चीज़ का तो वो रोज़गार में भी तब्दील होती हैं चीज़ें। अच्छा, अब मैं आपको बात करता हूँ रोज़गार की। देखिए यार, अगर आपके हाथ में हुनर है तो आपको रोज़गार मिलेगा। आप हमारे देश की अगर मैं बात करूँ, मैं आप अभी जर्नलिज्म कर रहे हो, मेरा आपसे एक सवाल है कि अनएम्प्लॉयमेंट है या लोग अनएम्प्लॉयबल है? ये बड़ा सवाल है देखो, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो हर किसी के पास व्यवस्था है। एक फूड डिलीवरी वाला भी काम कर रहा है, एक कंपनी में CEO भी काम कर रहा है, तो ये तो एक अलग विषय हो जाता है। मगर यहाँ पर हमारी विधानसभा में, हमारी एक दलित विधानसभा है, SC की सीट है हमारी, यहाँ पर विषय जो है वो और गंभीर है। यहाँ पर 10 से 12 साल की विधायकी के बाद भी आज विधायक जो है वो विफल है। यहाँ पर जो BJP के कैंडिडेट हैं श्री दुष्यंत कुमार गौतम जी, वो देखो यहाँ पर एक बड़ी उम्मीद के साथ आए हैं क्योंकि हमने यहाँ पर पुराने विधायक को देख लिया, पुराने विधायक की 12 साल की विधायकी को देख ली। यहाँ पर जहाँ पर लोगों के मकानों के रेट बढ़ने चाहिए थे वहाँ पे गिरते जा रहे हैं, सफाइयों की खराब व्यवस्था ठीक नहीं है। आप एक VIP वार्ड में खड़े हैं, यहाँ पर दिल्ली का मेयर जो दिल्ली का हमारे यहाँ पे निगम पार्षद दिल्ली का मेयर है, उसके बाद भी पूरी की पूरी वार्ड की सफाई की व्यवस्था चरमराई गई है। So we'll go across to some more people over here and try to understand that what are the issues here in Karol Bagh. Sir, आप भी हैं यहाँ पर, सीनियर सिटीजन हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार? चूँकि अभी जैसा कि भाई ने बताया, अभी यहाँ पर एक युवा थे, उन्होंने कहा कि किस तरीके से जो टूरिस्ट है वो अब धीरे धीरे नदारद होते जा रहे हैं। लोग जो हैं अब जाकर दूसरे शहरों में घर खरीद के रह रहे हैं। तो कैसे देखते हैं इन सारी चीज़ों को? कल दिल्ली का चुनाव है, ठीक उससे एक दिन पहले। सर, मैं बहादुर सिंह स्वामी, सनराइज हाई स्कूल डोबी में, अपनी मेरी भतीजी यहाँ जो है ना जॉब कर रही है मेट्रो में, और वो मुझे कहती है सर मुद्दे बताएं। अच्छा अंकल जी, यहाँ ठीक नहीं है, मैं यहाँ छोड़ के जा रही हूँ। मुद्दे ये है कि यहाँ नहीं तो हवा पानी की व्यवस्था ठीक है, और केजरीवाल जी जो है ना नज़ारे का साथ लेकर के यहाँ CM की गद्दी पे बैठ के लगातार 10 साल हो गए इनको, 2 योजना होगी, लेकिन यहाँ कोई विकास कार्य नहीं है। इन्होंने कहा था कि मैं जो है ना ही तो सरकार का बंगला लूँगा, ना ही सरकारी गाड़ी लूँगा, अपनी गाड़ी जाऊँगा। इन्होंने सारी व्यवस्था अपनी ले ली है। केजरीवाल जो है ना अपने वादे से मुकर गए हैं, लेकिन अब जनता बदलाव चाहती है, जनता हर हालत में बदलाव करेगी। और यहाँ से So Vineet, we have one more woman over here who is standing for quite long, and we will try to speak to her and try to understand that what are her issues in this assembly poll. Ma'am, आपका नाम और क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? My name is Bharati. I came from Tamil Nadu as a tourist. This first time I visited Delhi. I thought the Delhi is capital city of India. I very proud of before I came, but I came here. I was disappointed. Here nothing. This constituency, Karol Bagh constituency, nothing. Here no any improvement and development. This is capital city of India, but here I didn't see any Swachh Bharat. The street full of dirty and dirty only. So I was very much disappointed. But people are here. I see many Anand, people. I appreciate was asking. the sentiment that the people are displaying. Of course, we'll get to hear more of that tomorrow, and of course on the day when the results are also going to be out. Right now, we are dipping into a very short break. We'll be back with more.